Hi everyone, I'm Smiley Handa, PT educator. Today I will be telling you the golden hacks, golden tips and techniques for attempting read aloud item type, that is the first item type in the speaking part. See, read aloud is the one item type which carries very good weightage because this is the first item type. You have to do it obviously wisely, right? Now, if you want to do it in a great manner, then you must know what all are the things you have to keep in mind while you are attempting read alouds. First of all, I'll tell you, because this is an integrated test, so that means you have to be very good in read alouds, because read alouds give marks to not only in the speaking but also in your reading section, right? So जुड़े रहिए till the end. I will be telling you all the techniques to attempt read alouds. After watching the video till end, you will be confident enough to attempt the read alouds, right? So there is a 3-finger strategy I will be telling you for the read alouds. The 3-finger strategy में I will be telling you 3 techniques. Keeping in mind all 3 techniques, you have to attempt your read aloud. वॉच करिए वीडियो टिल एंड तक. उसके बाद जो टेक्निक्स मैं आपको बताने लगी हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस इन दैट मैनर ओनली एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर. फाइन, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज योर ACP. This is a 3-finger strategy. I think it is not working. First is A. A means your attention. Right? Attention says you have to be very cautious. See, in every read aloud, you get a preparation time of 35 seconds. I'll write here on the board. For the beginners who are very new, who are watching my video for the first time, you will be given 35 seconds to prepare each read aloud, right? Preparation time is 35 seconds, and once 35 seconds are over, you have to speak it for 40 seconds. ठीक है, preparation time is 35 seconds. You have to speak it for 40 seconds. Now what you have to do is, in 35 seconds, you have to prepare your read aloud in a very wise manner. See, there are few words जो easy होते हैं, there are few words जो difficult होते हैं read aloud में, है ना? तो read aloud में हमने करना क्या है? 90% और rather 95% वर्ड्स बहुत सिंपल होते हैं. डिफ़िकल्ट वर्ड्स इतने पेपर में नहीं आते बिकॉज एवरेज लेवल का पेपर सेट होता है. बिकॉज देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो +2 के भी बैठे हैं पेपर में, एंड देर आर अदर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है. ठीक है, तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर सेट होता है. इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट. ठीक, तो रीड अलाउड्स में हम सिंपल अगर वर्ड्स हैं तो हम उनको पढ़ते ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे रीड द वर्ड्स विच आर डिफ़िकल्ट टू देम. दैट्स इट, राइट? सो दिस इज़ द फर्स्ट रॉन्ग थिंग यू गाइज डू. ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये चीज़ करनी है कि प्रिपरेशन टाइम में आपने ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ना है, दो इट इज़ डिफ़िकल्ट और नॉट. ठीक, अब बारी आती है, एक बार मैंने रीड कर लिया, 35 सेकेंड्स आर मोर देन सफिशिएंट. रीड करने के बाद आपके पास टाइम बच जाएगा. अब आपने क्या करना है, आपने जो वर्ड्स विच यू फाइंड आर डिफ़िकल्ट उसको ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करनी है. अब हाँ, बात आती है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है. इफ़ यू फाइंड एनी वर्ड दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, उस वर्ड को हम कैसे बोल सकते हैं, उस वर्ड को आई विल टेल यू हियर. दिस इज़ द वर्ड, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, राइट? तो मैं इसको ब्रेक करके बोलूँगी. सी हियर, फिलैंथ्रोपिस्ट. आई हैव डिवाइडेड द वर्ड इनटू 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया. फिलैंथ्रोपिस्ट. ठीक है, तो आप कोई भी वर्ड है जितना मर्जी डिफ़िकल्ट है आप उसको बहुत इजीली बोल सकते हैं इफ़ यू डिवाइड द वर्ड इनटू 3 और 4 पार्ट्स. फिलैंथ्रोपिस्ट. तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आप बोल सकते हैं इजीली. और इतना टाइम हमारे पास होता है कि हम एक बार सारा कुछ रीड कर लें 35 सेकेंड्स में प्रिपरेशन टाइम में, और आफ्टर दैट हम उसको ब्रेक करके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी 2 या 3 बार बोल सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी careful and you have to provide attention. This is our first strategy. And the second 3-finger strategy में से second strategy क्या कहती है हमारी? Confidence.
कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल इन PTE. सी कॉन्फिडेंस है तो एवरीथिंग कैन बी डन वेरी इजीली. कॉन्फिडेंस नहीं है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट. अब हमने कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है. देखो कॉन्फिडेंस कब डेवलप होता है, जब आपको पता है कि मुझे एक चीज़ आती है, ठीक है. यू हैव टू टेल योर सेल्फ येस आई नो दिस थिंग, ठीक है. अगर आप डर डर के बोलोगे ना तो कंप्यूटर आपके मार्क्स काट लेगा. दिस इज़ ओनली द कंप्यूटर, देयर इज़ नो ह्यूमन बीइंग जो आपका टेस्ट इवैल्यूएट कर रहा है. तो कोई एग्जामिनर तो है ही नहीं जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है. सो नीड नॉट टू वरी. डर है किस चीज़ का आपको, होता है ना. फॉर एग्जाम्पल आइल्स की स्पीकिंग है तो देयर इज़ एन एग्जामिनर इन फ्रंट ऑफ अस, है ना. तो हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें आता भी तभी हम नर्वस हो जाते हैं. नो नीड टू वरी हेयर. इन योर एक्चुअल एग्जाम एज वेल, पेपर में कोई भी एग्जामिनर नहीं होगा. आपके 2 घंटे के एग्जाम में यू गाइज विल बी ऑल अलोन. ओनली जो PT एस्पिरेंट्स हैं वही होंगे. पेपर में कोई भी एग्जामिनर नहीं होगा आपके पास. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. अब कॉन्फिडेंस में क्या चीज़ आती है, जब भी आप कुछ बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोलो. अगर बाय मिस्टेक आपसे कुछ भी गलत प्रोनाउंस हो गए, नीड नॉट टू वरी. हम कहते हैं शिट एक चीज़ गलत बोली गई, उसकी वजह से आगे भी गलत हो जाते हैं, हमारी फ्लुएंसी ड्रॉप कर जाती है. वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. इट्स कम्प्लीटली ओके. बाय मिस्टेक इफ़ यू हैव स्पोकन समथिंग रॉन्ग, प्लीज़ मूव अहेड. डू नॉट गो बैक एंड मेक इट करेक्ट, ठीक है. वापस जाके उस वर्ड को करेक्ट नहीं करना. जैसा है उसको एज इट इज़ रहने दो. मेक श्योर कि आगे से वो आप मिस्टेक्स मत करो, लेकिन वापस जाके करेक्ट नहीं करना. नर्वस नहीं हो जाना, अदरवाइज ऑटोमेटिकली जो आपका फ्लुएंसी लेवल है वो ड्रॉप कर जाएगा. फ्लुएंसी लेवल ड्रॉप करेगा तो स्पीकिंग ड्रॉप करेगी, स्पीकिंग ड्रॉप करेगी तो बाकी मॉड्यूल्स भी ड्रॉप कर जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट स्ट्रैटेजीज. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. सबको पता है, छोटे होते से हम सुनते आ रहे हैं, है ना. तो इसमें देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है. यू गाइज हैव टू प्रैक्टिस. एक सिर्फ 3 to 4 लाइन्स हैं आपके सामने. करना क्या है, आपने रीड करना है. एक बार रीड करो, इफ़ यू विल टेक पॉजेज इन बिटवीन, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, 3 बार. ऑटोमेटिकली तीसरी बार में आप फ्लुएंट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है. आप ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हैं. वेबसाइट्स मैंने अपनी होटल में भी बताई हुई हैं. वेबसाइट्स मैंने यूट्यूब चैनल है स्माइली फ्यूचर बिल्डर्स मेरा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें. यू विल गेट डेली टिप्स, राइट. उसमें मैंने सब कुछ बताया है आपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, फ्रॉम वेयर वी गेट रिपीटेड मटेरियल, ठीक है. तो प्रैक्टिस करो. एक बार एक रीड अलाउड को बोलो. इट्स कम्प्लीटली ओके जैसा बोला जाता है, बट डोंट स्टॉप इन बिटवीन. कुछ गलत हो गया, कम्प्लीटली ओके, अगेन अटेम्प्टेड. फिर आप में थोड़ी और एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है. 3rd टाइम फिर से अटेम्प्ट करो, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ. अब मुझे बोलना आता है, वर्ड्स जो डिफिकल्ट हैं ब्रेक करो, प्रोनाउंस करो, फिर भी नहीं बोला जा रहा. कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं. अब हम कई बच्चे कहते हैं कि मेरी ना मदर टंग इन्फ्लुएंस है, या फिर मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मेरे से ना र वाले वर्ड नहीं बोले जाते. ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, लेकिन हमने उनके भी 90 दिलाए हैं. 90 दो देयर रिक्वायरमेंट है 6 or 7 ईच, दे गेट 90 इन स्पीकिंग. हाउ? टेक्निक्स फॉलो करो आप, आपके भी 90 आएंगे. आई एम श्योर यू गाइज कैन एबल टू डू इट, ठीक है. तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप. सिर्फ टेक्निक्स फॉलो करो. और कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बिलो. आई विल गेट बैक विद अनदर वीडियो विद योर प्रॉब्लम्स. जो भी आप नीचे मेंशन करेंगे, जिस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए, या फिर कोई भी रीड अलाउड्स में और कुछ पूछना है, यू गाइज कैन आस्क मी, ठीक है. तब के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे.